وزیر اعظم شہباز شریف سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ایم ڈی نے ملاقات کی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج کر زر مبادلہ میں اہم حصہ ڈالتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے جاری منصوبوں اور اقدامات میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ سردار تنویر الیاس پارٹی ٹکٹ کے معاملے پر ناراض ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے سردار رضا سے۔ بتائے گا سردار رضا، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، آزاد کشمیر میں انتخابات کا بگل بجتے ہی سیاسی کشمکش کا بھی آغاز ہو گیا، اور ابھی کچھ دیر قبل ہی آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے مستعفی ہوئے ہیں، اور ان کے ہمراہ وزیر حکومت جو ہیں وہ علی شان سونی اور دیگر کارکنوں رہنماؤں نے بھی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو خیرباد کہہ دیا۔ سردار تنویر الیاس اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ان کے درمیان آمدہ انتخابات جو ہے ان کے حوالے میں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر کافی دنوں سے کشمکش چل رہی تھی، اور اس موقع پر سردار تنویر الیاس خان سے ہماری جب گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اور میرے ساتھیوں نے پارٹی کے لیے بہت محنت کی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو قدر نہیں کی، اور پیپلز پارٹی نے مجھے اپنے حلقوں میں بھی ٹکٹ دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوئے، اس لیے ہم سب مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے جو ہے وہ سردار تنویر الیاس اور ان کے جتنے رفقا ہیں ان سے جو ہے رابطے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، سردار رضا اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ سندھ کے بلدیاتی نظام پر بات کرنے والے پہلے اپنے صوبے میں نظام لائیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں جہاں بلدیاتی نظام نہیں وہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی بلدیاتی نظام نہیں، کراچی میں 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی مذمت کرتا ہوں، وفاق ہمیں سولر اور ہوا سے بجلی گھر لگانے نہیں دیتا۔ یہاں پہ بلدیاتی نظام سرے سے نہیں ہے، وہ بڑے رجپاس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایون اسلام آباد میں نہیں ہے بلدیاتی نظام، سندھ میں بلدیاتی نظام ہے، اس میں بہتریاں چاہیے، اس کبھی ہم نے انکار نہیں کیا۔ زیادہ امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں سخت۔ دوسری طرف وفاق ہمیں بجلی گھر سولر پہ اور ونڈ پہ لگانے نہیں دیتا، تو یہ ڈیلیما مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے اور کب یہ ختم ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ اگر ہاتھ ملانے کو کوئی کمزوری سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو، لیکن فی الحال مذاکرات صرف نام اور پیشکش کے حد تک ہے۔ اگرچہ ہماری طرف سے خان صاحب نے یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے۔ اچکزئی صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا جب اسمبلی کے فلور سے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملانا کمزوری ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایک بار پھر مطالبہ کریں گے کہ خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں اور خان صاحب کی ملاقاتیں فی الفور بحال ہو۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا خیال ہے، اس کے خلاف میں کہتا ہوں، ساری باتوں کی تردید کرتا ہوں جو کہیں گے کہ کوئی ایسی سٹرگل کوشش ہوگی کہ اس کو ریپلیس کرے۔ بجٹ کا ہوا، ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ بیلنس بجٹ پیش کر سکے، لیکن anyway جو 48 ارب روپے ہے بالکل وہ خسارے والا، لیکن ہم وفاقی حکومت کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو ہمارا شیئر ہے ابھی آپ کو ہنڈریڈز آف بلینز جو ہے وہ بقایا ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے آئین پاکستان بھی اپنے حق کے لیے احتجاج کی اجازت دیتا ہے، ہم اپنے نہیں بانی پی ٹی آئی کے حقوق مانگ رہے ہیں۔ بانی کو اسپتال لے جایا جائے، ان کی کتابیں، بچوں سے رابطہ اور ملاقاتیں بحال کی جائیں۔ آئین پاکستان کا بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہو۔ عمران خان کے ہم حقوق مانگ رہے ہیں، اپنے نہیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو ہسپتال لے کے جائیں، کتابیں، ان کے بچوں سے بات چیت، ان کی 18 لوگوں کی ہفتے کی ملاقات، جو ان کا لیگل اور لافل رائٹ ہے۔ ہم اپنے ڈیمانڈ پہ کھڑے ہیں اور ہم عمران خان کے سارے حقوق بحال کروا کے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس کے بعد آپ پارٹی پھر ان کو رہا کروا لیں۔ فاروق ستار نے گل پلازا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے حصول کے لیے نیب اور ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کئی ماہ ہو گئے رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔
12,000 खानदानों का मुकदमा लेकर सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन गए। सिंध हुकूमत ने कहा ये होम डिपार्टमेंट का दायरा इख्तियार है। होम डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी कानून के पास भेजा और उन्होंने हमारी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। प्लाजा इंक्वायरी कमीशन जो जस्टिस आगा फैसल साहब ने इंक्वायरी की, उसकी एक रिपोर्ट बनी, कई माह हो गए, वो रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। ये पब्लिक में क्यों नहीं है? इसका मतलब जस्टिस फैसल आगा ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, इसीलिए इसे अवाम में नहीं लाया जा रहा, लोगों से शेयर नहीं किया। 12,000 फैमिलीज तबाह बर्बाद हुई हैं। हम उनका मुकदमा लेके सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में आए और कहा कि भाई हमारा राइट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये हमें कमीशन ने कहा कि भाई सिंध हुकूमत ये कहती है कि ये जो डोमेन है वो होम डिपार्टमेंट का है। हम होम डिपार्टमेंट गए, वहाँ पता चला कि ये रिपोर्ट सेक्रेटरी लॉ अली अहमद बलोच के पास है। उन्होंने हमारी ये दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। इनका काम है या तो ये इस्तीफा दें, ये घर जाएं, ताला लगाएं इस पे। अगर होम डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये केस इंशाअल्लाह हम नैब में ले जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी ले जाएंगे इसे। हुकूमत सिंध ने सानिया बल्दिया केस के मुलजिमान की रिहाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए MQM के कारकुनान रहमान भोला और जुबैर चरिया को रिहा करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम जुबैर चरिया और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया था। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्या हक़ाइक़ और कानून के मुतसादिम फैसले के खिलाफ आइन का आर्टिकल 188 लागू होता है। फैसला चश्मदीद, तिब्बी और दीगर शवाहिद को नज़रअंदाज करने की खामी का शिकार है। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुजरिमान की बरियत पर क्या कानूनी वर्सा एतराज़ नहीं उठा सकते? अपील में कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 4 के इतलाक़ पर एतराज़ात उठाए गए हैं। अपील में कहा गया है कि फैसले में ज़ख्मी गवाहों और केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नज़रअंदाज किए गए। येलो लाइन BRT करप्शन केस में एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के रिमांड में 3 दिन की तौसीक़ कर दी है। अदालत ने मुलजिम को मजीद 3 दिन के रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ख़वातीन के विरासती हुकूक से मुताल्लिक अहम फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 71 साल बाद बहनों और वालिदा को जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, ख़वातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी नहीं, सिविल सोसाइटी, उल्मा, रेवेन्यू हुकाम और कानूनी माहिरीन इन हुकूक से इन्हिराफ को रोकें। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया कि विरासत मर्दों की मेहरबानी नहीं बल्कि शरई और कानूनी हक है। ख़वातीन को महरूम करने के लिए जाली हब्बा, फ्रॉड और ख़ानदानी दबाव हरगिज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ है। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने भारत को 306 पाकिस्तानी मुशेरों, 715 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्तें फराहम की। नई दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के सरबराह साद वड़ाइश ने भारतीय हुकूमत को फहरिस्तें दी। पाकिस्तान में भारतीय मिशन के सरबराह गितिगा शेरवास्तु ने भारतीय कैदियों की फहरिस्तें पाकिस्तान के हवाले की। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में OPD सर्विसेज 24 दिन से बंद हैं, जिसकी वजह से गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। कोयटा से मंजूर अहमद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में बैरूनी मरीजों का इलाज मुआवजा 3 हफ्तों से ज्यादा अरसे से बंद है। सूबे के सबसे बड़े संडेमन सिविल अस्पताल का OPD वीरान पड़ा हुआ है। शहर बिलखुसूस दूर दराज के मरीज परेशान और मुश्किलात से दो चार हैं। अब तो कोई सरकारी अस्पताल आता ही नहीं, गरीब निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। जिन डॉक्टरों ने हड़ताल किया हुआ है उसका क्या जाता है, तनख्वाह तो चालू ही उसकी। आवाम की गम फिक्र उसके पास कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल है। कल से 3 लाख खर्चा हो गया। हेल्थ कार्ड तो है जो इसमें 10 लाख आता है वो भी खत्म हो गया। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम इधर तो अपना पैसे दे देंगे तो भाई जल्दी काम हो जाएगा। हम तो लोरलाई से आया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सिविल अस्पताल में डॉक्टर मानूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के बाद से हड़ताल कर रखी है। वो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के अलावा सेक्रेटरी सेहत और MS सिविल अस्पताल को हटाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत मामलात को बजाय संजीदा लेने के, उनके हल की तरफ जाने के मजीद पेचीदा करने की कोशिश कर रही है। कभी वो सस्पेंशन करता है और फिर जो मुद्दई है
उसी को मुनसिफ और जज बना के कि आप जाके उसकी इंक्वायरी में पेश हो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? सूबाई हुकूमत यंग डॉक्टर्स के मुतालबात तस्लीम करने को तैयार नहीं, हड़ताल तूल पकड़ गई है। यंग डॉक्टर्स ने रैलियां निकालने, लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर रखा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस से बाइकाट का भी मंसूबा रखते हैं। इस रसाकशी में सिर्फ गरीब मरीज ही रुल रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में OPD सर्विसेज को फौरी बहाल कराए। कैमरामैन शहीद लोधी और अबीबुल्लाह कंदानी के साथ मंजूर अहमद, एयरवन न्यूज़, कोयटा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 3 साला बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा बच्चे के वालिदैन का कहना है बच्चे का चंद रोज पहले बालिका अस्पताल में इलाज हुआ था। अस्पताल में इलाज के बाद से ही बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी थी। तबीयत बिगड़ने पर जब बच्चे का HIV टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट मुस्बत आई। औरंगी टाउन में अब तक 107 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। औरंगी टाउन की ज़िया कॉलोनी में HIV से मुतासरा बच्चों की अमवात 9 तक पहुँच गई है। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से फराह रब्बानी रिपोर्ट कर रही हैं। मुल्क के बेशतर इलाके इस वक्त गर्मी की शदीद लहर की लपेट में हैं। ताहम गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि आज से मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर अजला में बरसेंगी। अगले 3 से 4 रोज में जो है वो पाकिस्तान के बलाई इलाकों समेत बाज़ वस्ती इलाके और जनूबी इलाकों में भी कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो बारिश हो सकती है। मानसून बारिशें दर्जा हरारत में कमी तो लाएंगी, ताहम खबरदार रहें क्योंकि मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। रावलपिंडी के इलाके हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा है, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग का भी अंदेशा है। जी, बारिशों के पेश नजर NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो बारिश के मौसम में बरसाती नालों और दीगर आबी गुजरगाहों से मुतालिक मोहतात रहें और गली मोहल्लों में पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ फराह रब्बानी, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। DG खान में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत संगीन मुकदमात में मतलूब 8 मुल्जिमान ने सरेंडर कर दिया है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से। यासिर, बताइएगा। ये देखिए, गैंग ढोरा गैंग और जियानी गैंग जिन्होंने के इस पूरे रीजन के अंदर एक खौफ की फजा कायम की हुई थी और गुज़श्ता कई सालों से बेनस सूबाई वारदातों में मुलविस थे। अगवा बराए सामान, कत्ल, डकैती, इवन के मौके के ऊपर जब ये वारदात करते तो जिनाकारी में मुलविस है। तो इन खतरनाक गैंग के 8 अहम अराकीन ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में DPO DG खान की मौजूदगी और डिप्टी कमिश्नर DG खान की मौजूदगी में सरेंडर किया है। और इनमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इब्राहिम नामी एक डकैत जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने 1.5 करोड़ रुपए जो है उसकी हेड मनी रखी थी, उसने भी सरेंडर किया है। और बहुत से ऐसे मुल्जिमान हैं इन 8 लोगों में शामिल जिनके ऊपर 30 से 50 लाख रुपए हेड मनी था। और इस पूरे रीजन में DPO ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया गया है कि इलाके के अंदर अमन और अमान को कायम रखने में बहुत मदद मिलेगी। और इन्होंने जराइम से तौबा तायब होने का ऐलान किया, ना सिर्फ तौबा तायब होने का बल्कि जो कानूनी चारा जो है वो भी साथ साथ जारी रहेगी। यासिर शेख अपडेट करे थे, शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के AI विजन 2029 के तहत इक़दाम जारी हैं। मुशीर AI और खुसूसी इक़दामात अली डार का कहना है कि नौजवान पंजाब का सबसे बड़ा सरमाया है। AI और खेलों का इम्तजाज उन्हें आलमी मौक़े फराहम करेगा। अली डार ने लाहौर में वज़ीर खेल और तवानाई फैसल अयूब खोखर से मुलाकात की। मुश्तरका इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अली डार का कहना था कि वज़ारत खेल के साथ मिलकर पंजाब के स्पोर्ट्स सेक्टर में AI के मौसर इंतज़ाम पर काम कर रहे हैं।